चलिए सीधा रुख करते हैं गुवाहाटी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। Thank you. May I now request you, sir, to kindly felicitate Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles. Thank you. We will now felicitate Shri Rajinder Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Government of India. I'd request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly do the honours. Thank you so much. I'd now request Srimati Neelam Shami Rao, Honourable Secretary, Textiles, Government of India, to kindly deliver the welcome address. माननीय केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री जी श्री गिरिराज सिंह जी, वस्त्र राज्य मंत्री श्री मार्गरेटा जी, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय असम के टेक्सटाइल मिनिस्टर जी, सभी राज्यों से पधारे हुए माननीय मंत्रीगण, साथ ही राज्यों के सचिवगण, मिनिस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारीगण, एस्टीम्ड डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का वस्त्र मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मेरा तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। It gives me great pleasure to warmly welcome you all to this National Textile Ministers Conference. This conference is a momentous occasion for many reasons. Firstly, this is first conference of this nature and scale in the last many years, where we have had an opportunity, where we would have an opportunity to meet and deliberate on the course of action for the captures the very essence of our textile sector. यह प्रधानमंत्री जी के 5F की जो विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, को बहुत स्पष्ट रूप से सशक्त करने के लिए और उसमें पूरी ताकत से जुट जाने के लिए एक संवाद का रास्ता खोलता है। The active participation of states and UTs is central to the success of our policies. All of you are aware the textile and apparel sector की महत्ता केवल इस बात में नहीं है कि ये इकोनॉमी के कितने परसेंट में जो योगदान है वो देता है, कि ये 11% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान देता है, या ये लगभग $180 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री साइज है जो निरंतर बढ़ रही है और ग्रोथ दिखा रही है। यह इस बात का महत्व को प्रतिपादित करता है कि कृषि के बाद पूरे देश में यदि रोजगार का कोई साधन है तो टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर मिलकर के दिखाता है। यहाँ लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग टेक्सटाइल्स के कामकाज में जुटे हैं और लगभग इससे कहीं ज्यादा लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इनडायरेक्टली इसमें अपनी ओर से इन्वेस्टेड हैं, कामकाज को सपोर्ट करने के लिए जुड़े हुए हैं।
ये एक तरीके से शुरुआती उत्पादन से लेकर के आखिरी श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला तक की पूरी इंडस्ट्री एक बड़ी वैल्यू चेन की बात भी दिखाता है। और शायद इसलिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी और विकास के साथ साथ रोजगार की भी बात करें इस दौरान में। As one of the largest contributors to the employment, exports and regional development, textiles continue to occupy a unique place in our economic and social fabric. And it moves on to the cultural and our heritage livelihoods, and therefore becomes equally important that we invest ourselves in global competitiveness. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, the government has articulated a clear vision to build a $350 billion textile economy with $100 billion in exports by 2030. To do so, हम लोगों को आज जब हम लोग अपने पूरे बैठक में 1.5 दिन के लिए विचार विमर्श करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये विजन को सच्चाई में तब्दील करने के लिए किस तरीके के सहयोग और किस तरीके के आयाम हैं जो राज्यों को लेने होंगे। जैसे कि हमको फाइबर लगभग आज 15 मिलियन मीट्रिक टन से ले जाकर के 23 मिलियन मीट्रिक टन करना होगा। हमारे को रोजगार जो फॉर्मल क्षेत्र में है वो 4.5 करोड़ से बढ़ा करके कैसे हम 6.5 करोड़ तक पहुंचेंगे। Our approach is firmly anchored in cooperative federalism, where the center provides the support, national platforms, and also financial support, while the states leverage their comparative advantages, whether in cotton, silk, man-made fibers, handloom, handicrafts, apparel manufacturing, and now the new age fibers, which some of you would have witnessed today. From Gujarat and Maharashtra's industrial strength, Tamil Nadu's apparel ecosystem, Uttar Pradesh's strong handicrafts, to the Northeast's unique silk and handloom heritage, every state has a distinct and indispensable role in India's textile future. It gives me immense pleasure to inform that more than 500 districts of this country, लगभग 500 से अधिक जो हमारे जिले हैं, वो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई वस्तुओं को विश्व के अलग अलग कोने में एक्सपोर्ट करते हैं. I am confident that this penetration is going to get only deeper, and deliberations during this conference will lead to concrete and actionable outcomes. हम लोग 1.5 दिन में देखेंगे पहले क्षेत्र में कि किस प्रकार से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को मजबूत कर सकते हैं. दूसरे सत्र में फाइबर को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं. तीसरे सत्र में टेक्सटाइल की जो इमर्जिंग भूमिका है टेक्निकल टेक्सटाइल्स की और नए एज फाइबर्स की, उसमें प्रदेशों की ओर से क्या योगदान आ सकता है और क्या इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता है. और चौथे परिदृश्य में हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स, उसको हम कैसे अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़े रखते हुए एक पूरा ताना बाना इकोनॉमिक्स और लाइवलीहुड का जोड़ सकते हैं. मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हमने इसके पीछे एक मजबूत इंफॉर्मेशन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है. मुझे आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना है कि आप एक बड़ी संख्या में इतने दूर दूर इलाकों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और मंचासीन अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग आज पूरे दिन उत्सुक रहेंगे. और ये नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना बुनते हुए इट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्सटाइल्स
weaving growth, heritage, and innovation, I welcome you all again for this National Textile Ministers Conference. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, to kindly deliver his presentation on Vision, Center-State Partnership for Positioning India as a Global Textiles Manufacturing Hub by developing a US dollar. Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Minister of State for Textile, Sri Pavitra Margarikar ji, esteemed ministerial colleagues from the states and union territories, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary, Ministry of Textile, Sri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, Rajendra Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, distinguished participants and delegates. सबसे पहले तो मैं आप सबको स्वागत करना चाहूँगा और मेरी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल खास करके आज के मुख्य अतिथि गिरिराज सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि इतनी अच्छी मौका असम को दिया है होस्ट करने के लिए. As we gather here for National Textile Ministers Conference, we are standing on lane where weaving is not just an industry but an inherited grace. For centuries, the rhyme of the loom has been part of the life here. It was Kautilya's Astasastra in the 3rd century BC that first recognized our golden silks, and historical records show King Bhaskara Burman and gifting fabrics as pure as autumn moonlight to Emperor Harshavardhana. Today, under the ministry's vision of India's textiles, weaving growth, heritage and innovation, we have come together to take stock of our shared heritage in textiles and deliberate on the present, and also plan a collective roadmap through increased infrastructure, investments and innovation towards developing the textile industry and taking it to even greater heights. Assam is a home to 12.83 lakhs weavers, and we have 12.46 looms, the highest concentration in India. Over 90% of our weavers are women, and making this sector the public a single largest driver of rural empowerment and financial independence. Assam is the major producer of the Muga, our GI Tech golden silk, and we lead the nation by producing 65% of India's Eri silk. In this era of conscious consumption, Eri silk, known globally as Ahimsa silk, offers a cruelty-free, sustainable luxury that is now gaining WECO Tex Standard 100 certification, cementing its place in the global ethical fashion market. To transform this traditional age into the industrial leadership, our government has launched a textile and apparel policy of Assam 2025. This policy provides a robust framework for partnership with other states and the center and industry stakeholders. Infrastructure is the cornerstone of our roadmap. The integrated handloom park at Kaziranga is being developed to serve as a global retail window, showcasing our heritage to both domestic and international tourists visiting our UNESCO World Heritage Site. Assam has a robust field-level support network to ensure our weavers are future-ready. We operate institutional infrastructure, including the 102 handloom training centers and 4 handloom training institutes dedicated to skill upgradation
97 weavers extension service units and provide technical support directly in the clusters. 19 handloom production centers for the in-house manufacturing of high-value decorative fabrics. A critical pillar of our strategy is raw material security. We understand that the price volatility of yarn is the biggest challenge for a weaver. To combat this, we are currently running 33 yarn banks across various districts, providing quality yarn at a subsidized rate at the mill gate price and also providing front-end subsidy reimbursement. Northeast Handloom and Handicraft Development Corporation has achieved a significant milestone with the recent operationalization of their Eri silk spinning mill, especially in Buxar district. Presently, it is under the Bodoland Territorial Council, built with an investment of 14.92 crore. This facility is the largest of its kind in the Northeast. We are also coming up with milk silk spinning mills, coming up with the more silk spinning mills in Assam to ensure availability of quality yarn locally to our weavers at reasonable price. Innovation is being driven through our handloom research and designing center in Guwahati. We are not just preserving age-old motifs of our various tribes, but also digitizing them through computer-aided textile designing. We have launched several targeted initiatives. Mega Handloom Park in Sualkusi, it is to further strengthen the Manchester of the East. We are developing this park to integrate production and silk tourism with the support from DC Handlooms, Ministry of Textiles. Design studio and digital training. It is set up a state-of-the-art design studio come digital smart training center to bridge the gap between traditional weavers and the modern fashion requirements. Padma initiatives. We are establishing a mini museum and training complex to preserve the techniques of the Padma Shri Hemaprabha Sutiya, ensuring our most intricate weaving traditions and documented for posterity. We are also implementing various central sponsored schemes, including SMART cluster development programs under the National Handloom Development Program and other social security schemes. Our goal is to assist our weavers to attain commercial success by providing them with modern tools and the machineries like electronic jacquard, solar-powered looms, and direct market access. We are ensuring that the handmade in Assam tech remains a global benchmark for quality and ethics. Our flagship scheme, Swanirban Nari, under the state fund scheme, is a direct-to-weaver procurement. 5.64 lakhs weavers are registered on our digital portal, and we have directly paid over 31.75 crore to artisans, ensuring that the profit of the loom goes straight into the hands of those who weave it. During the Advantage Assam 2.0 summit in February 2025, Assam received investment proposal worth rupees 4.91 lakh crore. This confidence shows that Assam is perceived it's a strategic partner for the future. With our proximity to ASEAN markets and our logistical strength under the Act East policy, we are ready to contribute significantly to the goal of 350 billion textile industry investment. For the textile sector specifically, private players have shown interest to invest rupees 420 crore. The Textile and Apparel Policy of Assam 2025 has set out a competitive fiscal framework. Let us wave a future where the textile industry can contribute even more towards a Viksit Bharat. मैं असम
का मंत्री होने के नाते आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कल तक होने वाला एक जो सेमिनार है और कॉन्फ्रेंस है टेक्सटाइल मिनिस्टर्स का, इसी से एक नतीजा निकल कर आएगा जिसके द्वारा भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धन्यवाद। Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are privileged to present the India's Textile Atlas State Compendium 2025, a comprehensive, granular and data-driven report prepared by the Ministry of Textiles to enable policymakers effectively align state-level textile ecosystems with national flagship initiatives like PM Mitra Parks, the PLI scheme and the National Technical Textiles Mission. And now, may I request the Honorable Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, to kindly officially release the India's Textile Atlas State Compendium 2025. Would request other dignitaries on the dais to kindly join him. Ladies and gentlemen, please join me for a round of applause as we unveil this report. Thank you. I request our dignitaries to kindly take their seats. I would now request Shri Pobitra Margarita, Honorable Minister of State of External Affairs and Textiles, Government of India, to kindly share his valuable thoughts with this distinguished gathering. Namaskar. Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Sri Mohan Yadav Ji, Minister of Textiles, Handloom and Textiles, Government of Assam, Sri Urkhao Gaurav Brahma Ji, my colleagues in the Ministry, Secretary, Minister of Textiles, Government of India, Srimati Neelam Shami Rao Ji, Additional Secretary, Minister of Textiles, Sri Rohit Kansal Ji, Economic Advisor, Minister of Textiles, Government of India, Sri Rajendra Kumar Ji, and Honorable Ministers from different states of India, namely Ganesh Joshi Ji, Minister of Uttarakhand, Myato Lukham, Minister of Arunachal Pradesh, Bikas Sharma Ji, Minister of Tripura, Salhotno Kursi, Minister of Nagaland, Pradeep Pal Samanji, Minister of Odisha, Bikas Debarma Ji, Minister of Tripura, Balwant Singh Rajput Ji, Minister of Gujarat, Subhas Phal Desai, Minister of Goa, Sanjay Sokare, Minister of Maharashtra, Gajendra Yadav Ji, Minister from Chhattisgarh. I think I have not missed any name. All the honorable ministers from different states, senior officers of the Ministry of Textiles, representatives of state governments and union territories, esteemed members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar. As a son of this soil, it's a moment of deep personal pride for me to welcome you to the auspicious land of Ma Kamakya and Mahapurush Srimanta Sankardev. It gives me immense pleasure to be a part of this historic occasion where, for the first time, textile ministers and policymakers from across the country have come together on a single platform to collectively shape the future of this vital sector of textiles. It's not a ceremonial gathering, but a forward-looking initiative where the center and the states have come together to deliver it, to align, and to chart a shared national roadmap for the textile sector. Friends, we are meeting at a defining moment for the textile sector.
We are seeing a convergence of multiple trends with greater emphasis on innovation and new applications. Growing consciousness around sustainability and circularity and a renewed respect for tradition, craftsmanship, and responsible production. The future of textile lies not in choosing one part over another, but in harmonizing these dimensions into a resilient and a competitive ecosystem. It is in this context that we have come together to deliberate and exchange perspectives. Through dialogue, coordination, and collective resolve between the center and the states, this conference aims to ensure that India's textiles remain globally relevant, economically strong, and rooted in our values. The importance of this coordination cannot be overstated. The textile value chain does not recognize state boundaries. Its success depends entirely on policy alignment, shared infrastructure, seamless logistics, and coordinating skilling efforts. Friends, under the visionary leadership of Paramadharaniya Pradhan Mantri Narendra Modi ji, India has set an ambitious goal, already mentioned by my colleagues, of building a $350 billion textile economy and achieving $100 billion in export by 2030. His clear vision, that is the 5F, from farm to fiber, to factory, to fashion, and to foreign, has given the textile sector a new direction, new confidence, and a global ambition. I have missed one name. Honorable Minister of MSME, Goa, Sri Rakesh Sachandji is present also. My deep regards to him. So again, this target, which is being set by Honorable Prime Minister, reflects both the scale of India's textile potential and the confidence with which the country is positioning itself as a globally competitive, reliable, and responsible textile hub. The government is working in a steady and systematic manner to strengthen every segment of textile value chain, while maintaining a careful balance between scale, sustainability, and inclusiveness. Initiatives such as PM Mitra Parks, and I'll take this opportunity to congratulate Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. Already it's mentioned and applauded by you also. I do appreciate and I congratulate because of his dynamic leadership. He's at the top in implementing our PM Mitra Park. As from the Ministry of Textiles, we thank you and congratulate you, Honorable Minister. So initiatives such as PM Mitra Parks, the National Technical Textile Mission, the PLI schemes for textiles, and Samarth Skilling Program are being implemented alongside sustained policy support for handlooms, handicrafts, silk, jute, cotton, and other traditional sectors, ensuring holistic and region-balanced growth. To translate this vision into action, we are fortunate to have the leadership of our Union Minister of Textiles, Adharaniya Giriraj Singh Ji. His relentless focus on the grassroots, ensuring that the benefits of our policies reach even to the smallest farmer and to the remotest weaver, has infused a new energy in our ministry. Friends, as we begin this conference, I acknowledge the collective effort that has brought this platform together and thank all participant states, every stakeholder for coming together in the true spirit of cooperative and competitive federalism, united by a shared vision for the future of India's textile sector. I also thank Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma,
for his leadership and proactive support in creating a conducive and enabling environment, which has made Assam a fitting and proud venue for hosting this landmark national conference. Friends, I'm confident it will be a meaningful platform for dialogue and collaboration. It will help align perspectives between center and the states. It will enable us to chart a clear and coordinated path for the future of India's textile sector in line with the Vision 2030 and, of course, Viksit Bharat. With shared commitment and collective resolve, I am certain that the outcomes of these deliberations will strengthen India's position as a global leader in quality, innovation, and responsible textile production. Before I conclude, with immense pride, I'd like to just mention one datum. All of us know, but I'll take this opportunity, this perfect platform, to mention it that we are in the state of Assam, the Northeast, which is always considered as Astalakshmi and the growth engine of modern India by Honorable Prime Minister Modi ji. And I'm so proud to say that in the last handloom textile census conducted in 2019-20, it is found that highest numbers of handlooms are here in the Northeast. 52% of the total handlooms of India are here in Assam and the Northeast. So, Assam and the Northeast produce all the 4 varieties of silk: Eri, Muga, Mulberry, and Tussar. 60 metric ton Muga were produced in 2021, and 3,834 metric ton of Eri silk were produced in Assam and the Northeast. So, once again, from core of my heart, I welcome Honorable Union Minister, Honorable Chief Minister, all the Honorable Minister of different states of India, and all the stakeholders, officers of all our states and central government to this beautiful land of Assam and the Northeast. Thank you. And thank you, my Minister Giriraj Singh ji. Dhanyabad. Joy Ai Aham. Bande Mataram. Thank you, sir. May I now request Shri Mohan Yadav, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, to kindly address this august gathering. नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, अभी जिनने अपना विचार बहुत अच्छे से साझा किया, माननीय मंत्री पवित्र मार्गारेट जी, माननीय ब्रह्मा जी, मैडम समी, रोहित कंसल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस अवसर पर देश भर के हर राज्य के कमोबेश सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय महानुभाव, मां कामाख्या की इस धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त करें बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, तो ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के, और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग
हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के कच्चे बांस से वो अपने हाथों में ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसा लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव में उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ही ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 PM मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 PM मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक PM मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नए अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से, और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुधनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है।
और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक या मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल की धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। आज 2 दिनों का ये टेक्सटाइल चिंतन मंथन सम्मेलन के रूप में हम रखे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में अधिसंख्यक राज्यों के मुख्यमंत्री तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहां काम कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटि से धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे भाई और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी बढ़मा, अब जब बढ़मा ही हो तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहाँ। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप हम इनके लोन आपने लोन लिया है। मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है कैडर प्राथमिकता होता है तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा,
नाय तो हुकुम जी अरुणाचल, संजय सावरकरे जी हमारे मित्र महाराष्ट्र, बलवंत सिंह गुजरात, गजेंद्र यादव जी जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया गया है, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र राकेश सचान जी, और हमारी टीम की दोनों डीसी, निफ्ट की डीजी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में फाइबर को देखने वाली पद्मिनी सिंगला जी, अमृत मैम जी और बीना मैम जी जो दोनों डीसी हैं, हमारे सहयोगी जोगेंद्र जी, और सभी राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, सचिवगण, और खास करके आसाम। आपने चाहे हमारी सेक्रेटरी के वक्तव्य को सुना, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया, और हमारे एमओएस के द्वारा स्पीच में, कि हम यहां क्यों आए हैं। एक तो मैं गुवाहाटी को देवभूमि है, माता कामाख्या ये देवभूमि है, सबसे कहूंगा दर्शन करके जाएं। असम सरकार और पवित्रा जी ने सबके दर्शन की व्यवस्था रखा है, लेकिन आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार अगर देने वाला कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं इस धरती पर कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था, लेकिन पता नहीं पूर्व की सरकारों से कौन सी नजरअंदाज हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, आपको जान करके खुशी होगी कि आजादी के 77 साल बाद देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 80 टाइम्स 80 बार से अधिक इस नॉर्थ ईस्ट में आने का काम किया। और ये केवल आए नहीं, और मंत्री परिषद के सदस्य कम से, जो मेरे पास आंकड़े हैं, वो 800 टाइम्स से मोर देन, 800 टाइम्स से मोर देन, ये 11 साल में
नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट को। केवल विजिट नहीं किया है, समग्र विकास की प्राथमिकता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनर मंत्रालय की सोच रखा था और नरेंद्र मोदी जी ने केवल सोच नहीं रखा बल्कि जमीन पर मंत्रियों को भेज करके नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए, आसाम के विकास के लिए काम किया। और काम ही नहीं किया, मैं आपको कहूं कि पहले केवल 1 लाख करोड़ भी यहां इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 1000 में ही, और वो भी भेंट चढ़ जाती थी भ्रष्टाचार की। लेकिन आज लगभग 6 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का काम किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस नॉर्थ ईस्ट के आसाम ये मुख्य द्वार है, यहां हम इकट्ठा हुए हैं। शाम में हम नॉर्थ ईस्ट के एमपी मिनिस्टर सबसे बात करेंगे और इसके कारण आप देखेंगे कभी 5% का जीडीपी का ग्रोथ होना एक आश्चर्यजनक होता था, लेकिन आज के समय में 12 से 13% का जीडीपी का ग्रोथ है। इसके लिए मैं इन्हें, प्रधानमंत्री को, नॉर्थ ईस्ट को तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को, जिन्होंने भारत को राष्ट्रीय एकता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को ही बाहर नहीं निकाला, 1.25 लाख बीघा जमीन बांग्लादेशियों से मुक्त कराया। यानी पूर्ववर्ती सरकारों ने आसाम को धर्मशाला बना दिया था, लेकिन आज हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास भी चल रहा है। मैं इसलिए इन बातों को रखा कि नॉर्थ ईस्ट के आसाम से हम ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये 2 दिनों के चिंतन मंथन में, जैसा कि आपने देखा, हम एक तरफ एक्सपोर्ट को देखेंगे जिसकी चर्चा की है। दुनिया में उथल पुथल हुआ टैरिफ को लेकर के, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप आज हमारा जो एक्सपोर्ट था वो अगर हम देखते हैं 24-25 2 साल को अलग अलग नजरों से, तो हमारा ग्रोथ हुआ। और अगर केवल हम मंथ टू मंथ देखते हैं, 2024 नवंबर 2024-25 नवंबर 9.4% का ग्रोथ एक्सपोर्ट में हुआ। एक्सपोर्ट की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि हमने एक आंकड़ा रखा है जिसकी चर्चा हमारे टारगेट रखा है, और ये टारगेट रखा है राज्यों के बलबूते पर।
नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप जिस पीएम मित्रा पार्क की बात हो रही है, देश में छोटे छोटे पार्क 25 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़, इससे अधिक का पार्क नहीं के बराबर। लेकिन प्रधानमंत्री का सोच था इकोसिस्टम बनना चाहिए। अभी हमने 7 पार्क रखा। मैं, हमारी सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी, हमारे सहयोगी, सबों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि एनएचआई का एक प्रोजेक्ट होता है कि अगर प्रोजेक्ट समय के पहले पूरा कर ले तो 5% रिवार्ड मिलता है। तो हमारे पास रिवार्ड यही है कि मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आपको रिवार्ड दे रहा हूं, एडवांस रिवार्ड। महाराष्ट्र में हमारा, मुझे पूरा विश्वास है, महाराष्ट्र भी हमें समय पर माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री से बात हुई है। यूपी में भी अब काम तेजी से बढ़ चुका है। जो हमारे कर्नाटक में भी हमें यानी 7 पार्कों की गति बढ़ चुकी है। और ये पार्क केवल पार्क नहीं होगा, बल्कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होगा। और जब 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर मैं अभी देख रहा था कि टेक्सटाइल में अगर 1 करोड़ हम गारमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 से 60 लोगों को रोजगार देते हैं। लेकिन अगर पूरा इकोसिस्टम को हम वहां डाल देते हैं तो 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 30 से 40 लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये टेक्सटाइल, और जब मैं इस मंत्रालय में आया, मैं जानने का कोशिश किया कि आखिर रोजगार का मापदंड टेक्सटाइल में होता है तो गारमेंट। मेरा दुर्भाग्य है कि भारत में कोई राज्य, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हम सुइंग मशीन, इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन हम नहीं बनाते, सभी इंपोर्ट करते। तो मैंने तय किया कि जरा देखूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या प्लेटफॉर्म पर है। इंपोर्ट को जब हमने देखा तो 10 साल हमने पीछे यूपीए सरकार को लिया, तो वहां 33 लाख मशीन इंपोर्ट हुआ। मैं 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखा, 1 करोड़ 40 लाख हुआ। और 24-25 में अकेले 60 लाख मशीन इंपोर्ट हुए। इस मशीन से पता चलता है कि रोजगार का रेशियो, क्योंकि ये मशीन इंडस्ट्रियल स्टिचिंग मशीन, हमने उषा और सिंगर के काली मशीनों की बात नहीं कर रहा हूं। और आज देश के अंदर हम मिला लेते हैं तो 1 करोड़, हमें 2 करोड़ 6 लाख मशीनें हो गई मोदी जी के कार्यकाल में।
अगर 2,06,00,000 हो गए, 25% मशीनें इसमें लोग निकालते हैं, रिप्लेस करते हैं, वो भी मशीनें फिर रिकंडीशनिंग होकर के नीचे जाता है। अगर हम केवल 1.76 लें तो भी मिनिमम रिप्लेस को छोड़ भी देते हैं तो 3 करोड़ से ऊपर का रोजगार हमें मिला है। ये टेक्सटाइल रोजगार के सबसे बड़े केंद्र हैं। जैसा कि ऊपर दिखाया गया कि अगर मुझे अभी 15 मिलियन टन मैन मेड फाइबर में सिंथेटिक आ गया, बेस्कोस आ गया, और नेचुरल फाइबर सिल्क, वूल, जूट, कॉटन सारे आ गए। अब तो 3 फाइबर को नए ढंग से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये फाइबर मशीन मेड एमएमएफ होगा, वो इंडस्ट्रियल को बनाना इन्वेस्टमेंट वो भी हो रहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एमएमएफ जो होगा, आज पूरी दुनिया एक चीज पे टिकी हुई है कि सस्टेनेबल फाइबर चाहिए। अभी यूरोप ने जो एक्सपोर्ट स्टेट के अधिकारी आए हैं, मिनिस्टर आए हैं, 20% सस्टेनेबल फाइबर उसमें मिलाया जाता। ये सस्टेनेबल फाइबर है क्या? यूनाइटेड नेशन ने एक सेमिनार किया, मेरे एडिशनल सेक्रेटरी उसमें गए। आने के बाद मैंने पूछा कि व्हाट इज डिफिनेशन सस्टेनेबल फाइबर। उन्होंने कहा कि रिसाइकिल कॉटन फाइबर और रिसाइकिल पेट बोतल फाइबर। लेकिन आज सौभाग्य है कि दुनिया में भारत रिसाइकिल कॉटन और रिसाइकिल पेट बोतल फाइबर में भी अपना स्थान ऊंचा रखा है। लेकिन हम लोगों ने एक न्यू एज फाइबर जो कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से देखेंगे तो लेस देन 0 रहेगा। उसमें मिल्क बीट फाइबर लाया है जो किसानों को कम से कम 1.5 लाख एकड़ दे। और दूसरा, आपने, मेरा आग्रह होगा सेक्रेटरी सबसे, ये एक क्राइजेफ का स्टॉल होगा, उस पे रखा होगा जूट का फाइबर, हेम्प का फाइबर, शीशल का फाइबर, और उस पर रखा होगा रेमी फाइबर और लीलन फाइबर। मैं अभी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, कि मुख्यमंत्री जी, मैं आपके स्टेट में 2 फाइबर पर काम करना चाहता हूं। एक तो लीलन फाइबर पर, जो फ्लैक्स, अलसी मध्य प्रदेश में होता है। दूसरा मिल्क बीड, हर स्टेट में उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनके मध्य प्रदेश में मदार है। मैं ये जैकेट पहना हूं, ये उसी मदार के कपड़े का और उसी के अंदर ये फिलिंग किया हुआ है। यानी, और रेमी फाइबर और बैम्बू
नेचुरल मैकेनिकल फाइबर। अभी तक बैम्बू, चाइना ने कहा कि मैं बैम्बू फाइबर पर, वो बेस्कोस के मॉडल पर पल्प को केमिकल प्रोसेस से वो फाइबर बनाते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक न्यू एज फाइबर, जो राज्यों के द्वारा ही ये होगा, और रोजगार भी किसानों को हमने लिया है, रोजगार को भी लिया है। तो ये एक न्यू एज फाइबर और टेक्निकल फाइबर। टेक्निकल फाइबर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पहली बार हम इंपोर्ट को रोकने में सक्षम हुए टेक्निकल फाइबर में। आज एक्सपोर्ट हम $3 बिलियन से अधिक का एक्सपोर्ट किया है, यानी लगभग 25,000 करोड़ का। और ये मोदी जी के कार्यकाल में